Welcome back, students, to yet another class of Geography, Chapter 1, Resource and Development. And today we'll start with further. And so we have written Resource and Development Part 2. This all you've studied. What was a resource and different types of resources? I hope you've studied and copied it in your classwork copy. So now we'll start with indiscriminate use of resources. Problems created by man by indiscriminate use of resources. What is indiscriminate? ज़रूरत से ज़्यादा when you spend, then it is indiscriminate. Like Gandhi ji said, there is enough for everybody's need but not for everybody's greed. लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत रिसोर्सेस हैं, बट किसी की लालच को पूरा करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेस हैं, और लोगों की लालच की वजह से ही वो ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेस इस्तेमाल करते गए हैं, जिसकी वजह से देयर हैज़ बीन मैनी प्रॉब्लम्स. The first problem is many resources get depleted. कई resources जो हैं वो ख़त्म हो गए. Like हमारे जो पुराने forest थे, जो उनमें जड़ी बूटी मिलती थी, like संजीवनी बूटी, वो अब नहीं मिलती, ख़त्म हो गई है उसी की वजह से. वाटर की क्वालिटी जो पहले थी वो ख़राब हो गई है. Then second is resources got accumulated in the hands of poor people and the society has divided into rich and poor. जो ताकतवर लोग थे उन्होंने रिसोर्सेज को अपने हाथ में कर लिया, और उनके हाथ में रिसोर्सेज आ गए, वो हो गए रिच, और जो बाकी लोग बचे उनको रिसोर्सेज नहीं मिले एंड दे टर्न्ड इनटू पुअर. इसको कह सकते हैं society is divided into rich or poor or haves and have nots. Then because of indiscriminate use, many new problems have come up, like global warming, ozone layer depletion, environmental degradation and other problems. All this has evolved due to indiscriminate use of resources. So, in order to remove this problem, have to do resource planning. In India, resource planning is done in the following ways. Identification and inventory of resources by surveying and mapping. It means कहाँ resource है, उसको identify करना और उसकी list तैयार करना. और ये कैसे होगा? तो आप जाके जगहों को सर्वे करेंगे, देखेंगे और फिर उसकी मैपिंग करेंगे, यानी उन प्लेसेस को मैप पे लोकेट करेंगे. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग. यू हैव टू find out where you can find the resource, and then you have to prepare a list of that resource, and that you can do by surveying that area. That means उस एरिया में जाके उसको ढूंढना, and then placing it on the map or locating it on the map. Then evolving a planning structure, कैसे कैसे क्या होना है. And then third, matching resource development plans with overall national development plans. So these are the 3 steps which are done and in resource planning in India. Why do we need resource planning, or what is the need for resource planning? Resource planning is essential. It is essential to have resource planning because first
it helps to identify various resources present in different regions of the country. कहाँ कहाँ कौन से resources हैं उसको पहचानने में help करती है. Second is it helps in conservation of various non-renewable and extinguishable resources. इससे आपको पता चलता है कौन कौन से resources हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं. देन इट हेल्प्स वेस्टेज, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. देन फोर्थ, इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग रीजन्स दैट हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट. ये देखता है कि अगर कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है तो उन एरियाज के साथ बढ़े जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. देन इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज. मेरे पास कितने बाकी बचे ताकि उनको हम ध्यान रख सकें. इट हेल्प्स टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. सो दिस रिसोर्स प्लानिंग का कंक्लूजन है कि इट इज़ नेसेसरी. क्यों नेसेसरी? फॉर बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, एंड सारे रीजन्स को सम अप करते हैं, फॉर सस्टेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. सो दीज आर द एसेंशियलिटीज ऑफ व्हाई यू नीड रिसोर्स प्लानिंग. Okay, why balanced regional development is required? तो अभी हम लोग कर रहे थे रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, इंडिया में ऐसे ऐसे होती है, बट एक्चुअली होता क्या है रिसोर्स प्लानिंग? तो जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि ऐसे यूज़ हों कि हमें अभी भी काम आए और हमारे फ्यूचर के लिए भी बचे रहें, उसी को कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग. सो यू कैन सी रिसोर्स प्लानिंग refers to the strategy for planned and judicious use of resources. अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं और हर रीजन की अपनी अपनी, हर रीजन की में कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सी यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ राजस्थान. यहाँ पे बहुत सा पोटेंशियल एनर्जी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन कमी किस चीज़ की है? तो वाटर रिसोर्सेज की. ठीक. सिमिलरली कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख का रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन यहाँ पे कमी किसकी है? तो वाटर की और कुछ मिनरल्स की. ठीक. इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में बहुत से वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत से वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ कमी किसकी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हो, देयर आर वेरियस स्टेट्स, यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ कमी, तो सबको सब चीज़ बराबर से मिले, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है. तो रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड at the national, regional and state and local levels for balanced development of a country. Now, जो biggest problem आती है indiscriminate use of resources से, that is land degradation. Land degradation means deterioration in the quality of land. ये land degradation क्यों होता है? तो फर्स्ट इट इज कॉज्ड बाय सॉइल इरोशन, एंड सॉइल की इरोशन किसकी वजह से होता है? बाय रनिंग वाटर एंड विंड. सेकेंड इज डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स.
जो कचरा माइन से और इंडस्ट्रियल यूनिट से इकट्ठा होता है उससे भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है. देन ओवर इरिगेशन. ओवर irrigation leads to increase in salinity and alkalinity in the soil. ओवर इरिगेशन से क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने से सॉइल में सैलिनिटी यानी सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है और वो ज़्यादा अल्कलाइन हो सकता है. देन ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, इनकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. Then wastewater from industrial units also pollutes the land. And then आता है last mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry creates a lot of dust. ये क्या होता है, जब ये प्रोसेस होते हैं तो हवा में उड़ते रहते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स और फिर थोड़े टाइम बाद अर्थ पे सेटल हो जाते हैं यानी सॉइल पे सेटल हो जाते हैं और सॉइल को खराब कर देते हैं. इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. सो दीज आर द वेरियस कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.